My dear student, today I will teach coordinate geometry chapter 3rd. First of all, in this chapter we shall first define the coordinates of a point in a plane with the reference to two mutually perpendicular lines in the same plane. We shall also learn about the plotting of point in a plane which will be used to draw the graphs of linear equations in one or two variables in the Cartesian plane. First of all, some important terms in coordinates. Ordered pair. सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर, अ पेयर a pair of numbers A and B listed in a specific order with a 8 the first place and B at the second place is called an ordered pair. Pair A, B. For example, consider equations. Suppose that y is equal to 2x plus 1, where x is equal to 0, 1, 2. Equation y is equal to x plus 1, जहाँ पर where x is equal to 0, 1, 2, ऑर्डर्ड पेयर जो सेटिस्फाइड करेंगे इसको, वी हैव y is equal to 2x plus 1. First of all, when x equal to 0, then y is equal to 2 into 0 plus 1, so this is equal to 1. Put x is equal to 1, then y is equal to 2 into 1 plus 1, so this is equal to 2, 3, 2 plus 1, and put x is equal to 2, then y is equal to 2 into 2, 4, plus 1 is equal to 5. So the ordered pairs आर, एक्स लिया था मैंने 0 एंड वाई निकला 1, 0, 1, एक्स 1, देन वाई 3, एक्स 2, देन वाई 5. Then ordered pair are 0, 1,
1 3 2 5। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई दो रियल नंबर्स ए और बी लिए जाएं, उन ए और बी नंबर्स को ए को फर्स्ट प्लेस पे रखा जाए और बी को सेकंड प्लेस पे रखा जाए, तो ऐसे आर्डर को इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ए ऑब्लिक ए कॉमा बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बताया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर दे दिया जाए, जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 1 2 है, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, पुट अप द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 to find out the value of y is equal to 1 3 and 5, then ordered pair of are 0 1 1 3 and 2 5. Next define the coordinate geometry. First of all, coordinate. We represent each point in a plane by means of an ordered pair of real numbers called the coordinate of the point. Coordinate geometry, the branch of mathematics in which geometrical problems are solved through algebra by using the coordinate system, is known as coordinate geometry. Coordinate geometry. The father of coordinate geometry रेनी देकार्ते। रेनी (1596 to 1650), the great French philosopher and mathematician, published his work on coordinate geometry in 1637। जो रेनी देकार्ते थे, ये एक बहुत ही महान फ्रेंच फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे। इन्होंने जो कोऑर्डिनेट की बुक्स जो वर्क किया था वो 1637 coordinate axis second terms कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। The position of a point in a plane in a plane is determined
with reference to two fixed mutually perpendicular line called the coordinate axis. Let us draw two lines, that x डैश, हमने दो लाइनें ड्रा की, x डैश o and x, first line, and second line y o y dash, which are perpendicular to each other and intersect at the point O. ये दोनों लाइन, एक आपकी x एक्सिस हो गई, एक y एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. These lines are called the coordinate axis or the axis of references. The horizontal lines x dash o x dash is called x axis. X axis. The vertical line y o y dash is called y axis. The point O is called the origin. We can fix a convenient unit of length and taking the origin as 0, mark equal distance on the x-axis as well on the y-axis. हमने एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दो एक्सिस लिए, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. ये जहाँ पर कट कर रहे हैं उसको ओरिजिन कहते हैं. ये आपकी दोनों एक्सिस हो गई, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे ये. इसके बाद इसमें साइन क्या होंगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड अ प्लेन. जिस तरीके से नंबर लाइन पर आप किसी नंबर को प्लॉट करते थे, ठीक इसी प्रकार से एक प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट कैसे आपको प्लॉट करने हैं, तो सब इसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. Let P be a point and a plane. Suppose that this is y o y dash, x dash o x dash, x dash o x. This is x axis and this is y axis. Let P be a point in a plane. हमने एक P पॉइंट लिया एक प्लेन पर, यहाँ पर ले लिया मैंने पॉइंट P, and the distance of P from the y axis and distance of the P in x axis. First of all, let the distance of P from the y axis, suppose that a unit. ये था, ये y एक्सिस से P की डिस्टेंस पर जाने के लिए ये a है डिस्टेंस,
और एक्स एक्सिस से जो पी पॉइंट है वो है बी डिस्टेंस इसकी यहां से यहां तक की। यहां से हम देख लें, ये जो डिस्टेंस होगी ये भी आपकी ए होगी। तो इस पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है एक्स वाई एक्सिस से ए यूनिट और एक्स एक्सिस से बी यूनिट है। वी से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू ए एंड वी। ए इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और एक्सिस ऑफ पी, बी इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पी। ए एक्स कोऑर्डिनेट, या हम इसको कह सकते हैं एब्सिसा ऑफ पी एंड वी इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट और called ordinate of P। ए को हम एक्स कोऑर्डिनेट और बी को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं एफ ऑफ पी एंड ऑर्डिनेट ऑफ पी। अब इसके बाद आपका क्वाड्रेंट है। QUADRAN quadrants। The coordinate axis XOX and YOY be the coordinate axis. Let this YOY and XOX X dash O X Y O Y dash, this figure. These are axes divided the plane of the paper into 4 regions 1 2 3 4। हमने इस प्लेन पेपर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। These 4 regions are called the coordinates. These axes divide the plane of the paper. These axes divide the plane of a paper into 4 regions called quadrant. These axes divided 4 parts: first, second, third and fourth. So if the first quadrant, both quadrant is abscissa and ordinate are positive. Why? This is the origin. यदि हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चलेंगे राइट हैंड की तरफ तो ये पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव होता है। ओरिजिन से यदि हम ओरिजिन के ऊपर चलेंगे
तो ये आपका वाई एक्सिस पर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, प्लस और प्लस। इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, फॉर अ पॉइंट एक्स एक्सिस एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, यानी माइनस एंड प्लस। एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर अ पॉइंट बोथ एब्सिसा आर कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपके नेगेटिव होंगे, क्योंकि ओरिजिन से सबसे पहले हम यूँ चलेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। कभी भी कोई भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चलते हैं और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर, उस पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चलेंगे प्लस, और जब इसके नीचे डाउन करेंगे तो माइनस में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, हम यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। हम एक टेबल बना दें, क्वाड्रेंट्स लिख दिया, रीजन लिख दे, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर से देखिए रीजन होगा आपका एक्स ओ वाई, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। एक्स और वाई की वैल्यू 0 से अधिक होंगी, यानी प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स इज लेस देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, देन माइनस एंड प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स इज लेस देन 0 and y is less than 0, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में होगा y डैश ओ एक्स, x is greater than 0 and y is less than 0 प्लस माइनस। इट मीन्स जब भी कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें दोनों धनात्मक वैल्यू होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और पॉजिटिव के साथ साथ दोनों जब पॉजिटिव तभी होंगे जब वो 0 से बड़े होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा एक्स वो नेगेटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपके नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में एक्स आपका पॉजिटिव होगा एंड वाई नेगेटिव होगा। पॉइंट ऑन एक्सिस, if a point P lies on x-axis, x O
x dash y o y dash. सपोज दैट कोई पॉइंट P है, वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर दिया गया है P है. इट्स कोऑर्डिनेट in the form of x and 0 y. ओरिजिन से x एक्सिस पर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो सपोज दैट x है, और y कोऑर्डिनेट पर y डिस्टेंस की 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x एंड 0. अगर ये p डैश यहाँ होता तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस x एंड 0 होता. ये जो आपका पॉइंट्स है वो x एक्सिस पर दिया गया है. यदि x एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में दिया गया है तो जो भी आपकी वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का ओरिजिन से, वो और 0 होगा, और इधर निगेटिव और 0 होगा. सपोज दैट एंड अदर पॉइंट्स लाइज ऑन एक्सिस y, देन q. सो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू x डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर विल बी 0. सो 0 एंड y डिस्टेंस ओरिजिन टू पॉइंट q इज इक्वल टू स्मॉल y. सो दिस पॉइंट इज q कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड y, एंड अदर q डैश सेम 0 एंड ये, लेकिन ये जो आएगा माइनस में रहेगा, x का तो पॉजिटिव रहेगा 0 है, और ये माइनस में रहेगा. इस तरीके से जो x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट आएंगे वो पॉइंट इस प्रकार से डिनोट किए जाएंगे. प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स. In order to plot the points in a plane, we may use the following algorithm. सबसे पहले देखते हैं, draw two mutually perpendicular line on the graph paper, one horizontal and other vertical. Mark their intersection point as O. Choose a suitable scale on x-axis and mark the point on both axes. Obtain the coordinate of the point which is to be plotted. Let the point be P, A and V. To plot this point, start from the origin and A unit, move along OX or OX dash according as a positive or negative respectively. Suppose we write at point M. From point M, move vertically upward or downward B. Suppose the point M. This distance between x-axis is equal to A, and this distance equal to B. Then coordinate of point M is equal to A and B. So some terms in coordinates आपके ये हो गए हैं. अब नेक्स्ट टर्न पर आपको हम इसकी एक्सरसाइज जो दी गई है उसको करेंगे. तब तक आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेंगे. दैट्स ऑल.